दिख रहा है? हाँ सर। ओह, सबको दिख रहा है? हाँ सर। अभी ना what came ना? देख, जीपी कर रहा था ना? जीपी कर रहा था ना? देखो, एक क्वेश्चन लिख। If the sum of an infinite GP is 20 and sum of their square is 100, then find common ratio. Can you see the board? Yes sir. Yes sir. Abhinav, are you there? Shaina, Yes, sir. Chiranjeev, can you see? Yes, sir. Yeah. Okay, Yes, very sir. good. See, very good. So this is given. The sum of an infinite GP is 20. ऑफलाइन क्लास शुरू हो जाएगा रे अभी, हाँ, कुछ ही दिन में। सर केई तारीख हो बड़ा? 15 আগস্টৰ পিছত। ओके सर। सर स्कूल का ऑफलाइन क्लास? स्कूल तो सेप्टेम्बरत চাগে খুলিব। টিউশন অফলাइन স্টাर्ट কৰিম আৰু আস্তে আস্তে। ओके सर। The infinite GP sum is 20 and sum of their square is 100. Then you have to find the common ratio. See. So what is the sum of infinite term of a GP? A by A divided by 1 minus R. A by 1 minus R is given how much? 20. Yes? Understood? Yes sir. And then next one, sum to the infinite, sum of infinite term, but their square this time. How could you write that one? A square by 1 minus R whole square. Yes, very good. Who? Shaina, na? Yes, sir. See, if my GP is suppose A, AR,
AR square. This is my original GP. Now, if I tell their square, then your term will be what? This will be the term. Am I clear? Yes, sir. Yes, sir. In that case, your first term become A square, common ratio become R square. Okay? Okay? Okay, sir. Yes, sir. So यहाँ से काम करो, तुम लोग A फाइंड कर लो पहले. Suppose A equal to 20 into 1 minus R. Leave it. This is to give number 1. And write A square by 1 minus R square is equal to what? What it is given? 100. 100. Am I clear? Yes. Now you do one thing. The value of A is 20 minus 20 into 1 minus R. Fit here. A square, that is 20 square is 400. Then it will be 1 minus R whole square. Is that okay? Is it okay? Yes, sir. Yes, sir. Very good. Cross multiply it. Make it one equation. You will get one quadratic equation. See? So 400 into 1 minus R square. And that side is 100 into, so this is R whole square. 100 into 1 minus R square. Break it. A minus B whole square is square plus B square minus twice AB. 100 minus 100 R square. Is that okay? Yes, sir. So then 100 you can cancel. Because 0 cancel first. It becomes smaller one otherwise. Now write 4 into 1 minus R square. The next line you can cancel also. So it is 4R square. Take it this R square plus R square minus 8R. Then plus 4. Take 1 this side, minus 1, 0. So 5R square minus 8R plus 3 equal to 0. Can you solve now? Try to solve it. इस सर लाइन से आपने टर्म स्प्लिट क्या है? हाँ मिडिल टर्म स्प्लिट होगा ना. देखो 5 and 3 हो जाएगा. या तो देखो ये स्टेप में तुम लोग शॉर्टकट भी कर सकते हो. मैं वो स्टेप स्किप करके चला गया. मैं ये था ना. देखो 400 1 minus R square by 1 minus R square equal to 100 था ना. Yes, sir. Yes, sir. ये स्टेप में तुम लोग ये भी कर सकता था. 1 minus R whole square. This is A minus B, A plus B. Yes or not? Yes, sir. Yes. अब जल्दी आंसर आ जाता. एक एक कैंसिल हो जाता और आंसर would become easily 0 0 0 0 cancel. Means 4 into 1 minus R by 1 plus R equal to 1. क्रॉस मल्टीप्लाई करो तब जल्दी आंसर आ जाएगा. इसमें भी आएगा 4 minus 1 equal to 5R. R equal to what? 5 by 3 by 5. यहाँ पे भी होगा. देखो 5R square minus 5R minus. तो यहाँ पे तो 2 आ रहा Sir, यहाँ पे 2. है 3 बार 5 नहीं 2 आने से भी R का वैल्यू शुड बी व्हाट? मॉडुलस ऑफ R शुड बी व्हाट? इनफाइनाइट टर्म में याद नहीं है.
should be less than 1. Yes, less than 1. Yes, उसमें एक टर्म एग्जैक्टली 1 आएगा देखो। Yes, Yes, sir. sir. वो सब याद रखना होगा, दिमाग में रखना होगा सारा। 5 आर कॉमन, आर माइनस 1, -3 कॉमन, आर माइनस 1, सो आर माइनस 1, 5 आर माइनस 3। तो एक होगा तुम्हारा यहाँ से आर माइनस आर इक्वल टू 1, और एक होगा r इक्वल टू 3/5। दिस इज नॉट पॉसिबल। व्हाई? बिकॉज r शुड बी व्हाट? मॉडुलस ऑफ r, Less than 1. Modulus are less than 1. since modulus r less than 1, so therefore r equal to 3/5. Is that okay? Understood? यस सर। सर आपने मतलब बीच में जो किया था वो नहीं कर सकते? हाँ, वो भी कर सकते हो, वो करने से ज्यादा इजीली आ जाएगा आंसर। ठीक है, मतलब ये मैं कर लिया था इसलिए उसको भी कंटिन्यू कर दिया। चलिए, उस पहला मेथड से करने से तुम्हारा कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। इन अ जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन of positive terms, comma, each term equals the sum of the next two terms, full stop. Find the common ratio. Find the common ratio. इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन देखो, सारा टर्म पॉजिटिव है। each term equal to sum of the next two term, मतलब इट इज दिया है देखो, गिवन कोई भी टर्म, सपोज टर्म 1 से शुरू किया, टर्म 1 इक्वल टू टर्म 2 प्लस टर्म 3, यस, और यू कैन राइट टर्म 2 इक्वल टू टर्म 3 प्लस टर्म 4। अंडरस्टूड? each term equal the sum of the next two term. Is that okay? Yes, sir. यस। Now write term 1 equal to what? A, yes, sir. right? Just put the value, you'll get the answer. Term A, suppose A, term 2 AR. Term 3 AR square. A cancel, it will be like 1 equal to R plus R square. Or R square plus R minus 1 equal to 0. Use quadratic formula. Use quadratic formula. सर ए कैंसिल कैसे होगा? यहाँ से कॉमन ले लें, इसके साथ फॉर्म कैंसिल। ओके सर। यहाँ से ए कॉमन ले लें इस तरफ, R plus R square। ये कैंसिल कर दो,
So that is r square plus r minus 1 equal to 0. Now solve करो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में डालो. क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में डालने से r इक्वल टू होगा माइनस बी, बी इज 1 प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर 1 square minus 4, a is 1, c is minus 1 divided by twice a is 1. 1 plus 4. Yes, Yes, sir. very good. So you can say this one is 2 minus 1 plus minus root 5. तो यहाँ पे दो वैल्यू है, हाँ? एक प्लस है और एक माइनस है. Minus. इसमें. अभी बोलो, दोनों आंसर होगा ना एक आंसर होगा? Sir, positive वाला होगा. पॉजिटिव वाला Positive वाला आंसर होगा sir. क्यों? Sir, क्योंकि क्वेश्चन में दिया GP is positive. That's right. Yes, the terms of the GP are given what? All positive, isn't it? So ratio will be positive. Since r is greater than 0 लिखना, so r का वैल्यू होगा, क्योंकि वहाँ पे निगेटिव टर्म नहीं है, सारा पॉजिटिव टर्म है, तो रेशियो फाइंड करोगे तो all should be what? Positive term. Positive. Very good. So this one is accepted. Is that okay? Yes, sir. Yes, sir. Understood everyone? सर यहाँ पे मॉड्यूलस ऑफ आर नहीं दिखेंगे. हाँ, तेरा इनफाइनाइट टर्म है ये. ओह अच्छा, सॉरी सर. जीपी इनफाइनाइट टर्म बोलेगा तभी उसमें कंडीशन आता है mod r should be less than 1. Understood? यस सर. Now देख, कुछ सम्स होगा, हाँ, यहाँ पे थोड़ा हम लोग मल्टीप्लाई करके एडजस्ट करना होगा. देखो, ये क्वेश्चन है, फाइंड द सम टू द इंफिनिटी ऑफ द सीरीज. Find the sum to infinity of the series 1 plus 2 by 3 plus 6 by 3 square plus 10 by 3 cube plus 14 by 3 to the power 4, ये क्यूब है, प्लस डॉट डॉट डॉट. लिख लिया? लिख लिया? Yes, sir. देखो यहाँ पे एक चीज देखो, इसको छोड़ के देखो, ये वाला, ये सब टर्म देखो, ऊपर अगर माइनस करोगे तो क्या आ रहा है? 4 आ रहा है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, और sir. नीचे देखो
3 करके मल्टीप्लाई हो रहा है ना, Yes, sir. सो इसमें मतलब 3 नहीं Yes, है, sir. Yes, sir. इसमें 3 मिसिंग है, Yes, sir. बाकी सब में 3 है। Yes, sir. ओके, सो व्हाट यू Yes, हैव टू sir. डू, देखो हम लोग एक काम करते हैं, इसका नाम देते हैं एस सम, 1 प्लस 2/3 प्लस 6/3 स्क्वायर 10/3 क्यूब 14/3 टू द पावर 4 प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. तो इसको एक काम करते हैं हम लोग, हाँ डिवाइडेड बाय 3 कर लेते हैं, क्योंकि इसमें एक 3 चाहिए, इसलिए मैं एक डिवाइडेड बाय 3 कर लेता हूँ। हाँ, एस बाय 3 मतलब मल्टीप्लाई बाय 1/3 बोथ साइड, इस साइड में भी इस साइड में भी, तो ये 1/3 हो जाएगा ना। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. वेरी गुड, 1/3 प्लस ये क्या होगा 2/3 2/9. स्क्वायर, ओके, देन 6/3 3 cube. क्यूब, देन 10/3 3 to the power 4. 14/3 3 to the to power the 5. power 5, ऐसा हो जाएगा। Yes. Yes, Yes, sir. sir. वेरी गुड, नाउ देखो इसमें तुमको एक चीज देखना होगा अभी। हाँ, ये जो माइनस करने के बाद देखो 4 आया था ना सब में, Yes, sir. Yes, sir. तो अभी टर्म कैसे अरेंज करोगे, देखो ऐसे माइनस करेंगे, 6 - 2 करने से 4 आया था, 10 - 6 देन इट इज 4, तब ये सीक्वेंस में आ जाएगा 6 - 2, ये 6 के नीचे ये जो 2 है इसको रखेंगे, मतलब थोड़ा इसको एडजस्ट करेंगे। देखो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, 1/3 में इसके नीचे लिखूंगा, ये मतलब मल्टीप्लाई किया, देन 2/3 स्क्वायर, ये माइनस ये करने से ऊपर 4 आ जाएगा, 10/3 टू द पावर 4 Tate 6 to 6 गुड, देन 10/3 टू द पावर 4 प्लस डॉट डॉट डॉट। वेट 1 सेकंड, वन स्टूडेंट के उसके बाद और भी टर्म है। हाँ, ठीक है, Okay, sir. Sir, Sir. 6/3 to the power 4 और 10/3 to the power 4 दोनों में सेम नहीं कैसे हो गया? इसमें 5 है, इसमें 5 है, मल्टीप्लाई Sir, करने के बाद 6 और 3/3 देखो इसके Six. इसके देखो 1/3 मल्टीप्लाई किया, ये 1/3 इसको यहाँ पे लिखा मैंने, ये 1 को, ठीक है। Yes, sir. Yes, फिर sir. इसको मैंने यहाँ पे इसके नीचे लिखा, फिर इसको मैंने यहाँ पे लिखा, देन इसको मैंने यहाँ पे लिखा, 3 टू द पावर ये हो जाएगा क्यूब, और ये हो जाएगा 3 टू द पावर 4, ठीक है, अंडरस्टूड। Yes, sir. एक टर्म मतलब मैं राइट साइड से लिखा, यहाँ से लिखा, एक्चुअली लिखना मुझे यहाँ से था 1/3 देन 2/3 स्क्वायर, मैंने सिर्फ एक इस तरफ से लिखा ताकि मुझे माइनस करने में इजी हो जाए। देखो 6 - 2 करोगे 4 मिलेगा ना ऊपर, Yes, sir. 10 Yes, - 6 करोगे तो 4 मिलेगा, Yes, sir. 14 - 10 करोगे तो 4 मिलेगा। 4. उसके बाद इनफाइनाइट टर्म है, वो सब और मत लिखो, सपोज इसका नाम है 1, इसका नाम है 2, ठीक है। Okay, sir. मैं काम करता हूँ अभी 1 - 2 कर देता हूँ, ठीक है, 1 - 2, तो इस तरफ ये माइनस ये s - s/3, इसमें कुछ भी नहीं है, यहाँ पे नथिंग मतलब 0,
तो 1 माइनस 0 1 ही होगा। फिर इसके नीचे ये माइनस, समझ में आया ना, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो ये मैंने रखा हुआ, ये माइनस ये नथिंग मीन्स व्हाट, 0. 0. 0, तो उसको ऐसे ही रखा। फिर ये माइनस ये करो, ये माइनस ये करो, 1 बाई व्हाट, 1 by 1 by 3. ये माइनस ये करो, 4 by 3. 4 बाई 3 4 स्क्वायर, by isn't 3 it? square. फिर ये माइनस ये करो, 4 बाई, 4 by 3 cube. फिर ये माइनस ये करो, 4 by 3 to the power 4. वो तो चलता रहेगा अभी, isn't it? उसके बाद 4 by 3 to the power 5, 4 by 3 to the power 6, it will continue up to infinity. Am I clear? Yes, sir. So this is 3s minus s twice s. Okay? Sir, Yes. sir, Yes, yes. can you explain that second equation again? इसको मैंने 1 by 3 से मल्टीप्लाई किया बोथ साइड, ठीक है? Yes, sir. देखो मैंने कैसे मल्टीप्लाई, मैंने क्या बोला था, 6 माइनस 2 करोगे तो 4 हो रहा है। देखो ऊपर एक सीक्वेंस देखो, 6 माइनस 2 4, 10 माइनस 6 4, 14 माइनस 10 4, सेम हो रहा है ना? Yes, sir. तो मतलब 6 से जब माइनस करूंगा ऊपर 2, तो 6 के नीचे 2 रहना होगा। मैंने 1 by 3 मल्टीप्लाई किया, एक्चुअली ये टर्म यहाँ पे होना चाहिए था 1 by 3, मैंने यहाँ से लिखा, ठीक है? Oh, yes, sir. तो नेक्स्ट वाला यहाँ पे चला गया, 2 6 के नीचे चला गया, देखो। Yes, sir. फिर ये वाला उसके नीचे चला गया, देखो। Yes, sir. तो 10 माइनस 6 4 हो रहा है, 6 माइनस 2 4 है। वो ऊपर मिलाने के लिए मैंने 2 को 6 के नीचे रखा, Okay, sir. तो एक गैप यहाँ रख दिया मैंने। अगर इसको गैप नहीं रखोगे तो सीक्वेंस नहीं मिलेगा। अगर तुम यहाँ से इसको माइनस करोगे, यहाँ से इसको माइनस करोगे, तब नहीं होगा। Okay, sir. तो ये सब चीज तुमको देखना होगा, जब सीक्वेंस सीरीज में और सम करोगे तो आस्ते आस्ते ये आइडिया आ जाएगा। Okay, sir. अंडरस्टूड नाउ? Yes, sir. देखो यहाँ से यहाँ तक तुमको एक इनफाइनाइट जीपी मिलेगा, बाद में दिखाता हूं मैं। तो यहाँ पे मैंने एलसीएम ले लिया 3s माइनस s 2s, इन दोनों को प्लस कर दो, तो ये दोनों यहाँ पे एक साथ मत करो, क्योंकि नहीं तो 4 by 3. 4 by 3। बट यहाँ से अगर 4 कॉमन लेंगे तो ये क्या होगा, 1 by 3 square plus 1 by 3 2 by 3. ये वाला चीज देख जीपी में आ गया, देखो इनफाइनाइट जीपी में आ गया। Yes, sir. व्हाट इज आर? व्हाट इज आर हियर? 1 by 3. 1 by 3. 1 by 3, so modulus are obviously less than 1, तो सम फाइंड हो जाएगा। मतलब तुमको s फाइंड करना है अल्टीमेटली, तो ट्वाइस s by 3, 4 by 3 plus sum to the infinite term of GP, a by, what is a? 1 by 3 square. By 3. 1 minus r, r is what? 1 by 3? 1 by 3. Good. 4 by 3 plus 4 into, so 1 by 9, 3 minus 1, 2 by 3. These are called some special series. Plus 4 into, this is 1 by 9, into करने से उल्टा हो जाएगा 3 by 2. 3 3 are 9, 2 2 are 4, 2 by 3, और इस तरफ है 4 by 3. 2 by 3 plus 4 by 3, 4 by 3 plus 2 by 3. Answer is what? 6 by 3 2 ना? Yes, sir. Twice s by 3 equal to 2. Cross multiply करो. Twice s equal to what? 6. So what is s? 3. Sum is 3.
अंडरस्टूड? Yes, sir. अंडरस्टूड? Yes, sir. एपी में एक ऐसा मेथड मिलेगा दैट इज कॉल्ड मेथड ऑफ डिफरेंस। एपी जब करेंगे तब एग्जैक्टली ये सब नहीं है, मतलब इसका थोड़ा कॉन्सेप्ट उसके साथ मिल होगा। जब देखोगे माइनस करने से सेम होता है, तो ये चीज तो वही पे अप्लाई होगा। उसको बोलते हैं मेथड ऑफ डिफरेंस। ओके, नाउ कुछ स्पेशल सीरीज का तुम लोग सम लिख लो। तो पहले देखो, सम ऑफ स्पेशल सीरीज। तो ये तो तुम लोगों को ऑलरेडी मिला था, लास्ट टाइम में भी मिला था। सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज व्हाट? What is sum to the first n natural number? N whole into n plus 1 by 2. Yes, n into n plus 1 by 2। ये एक्चुअली एपी में है, तो एपी में करने से भी वो आ जाएगा, बट ये याद रखना होगा तुम लोगों को। भाई ये चीज को कभी कॉम्पैक्ट फॉर्म में, छोटा फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, सिग्मा के गोज फ्रॉम 1 to n। समझ में आया? देख लो सिंबल टू। ये पूरा चीज को मैंने लिख लिया के स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to n। अगर के में 1 डालोगे तो 1 से शुरू होगा, मतलब ऐसे लिख पाओगे। इसका एक्सपांडेड फॉर्म फिर ये होगा कि 1 then 2 plus 3 अप टू अपर लिमिट इज व्हाट? n N. तो वही आएगा, ऊपर वाला चीज ही आएगा ना। Yes, sir. तो याद रखना होगा सिग्मा के गोज फ्रॉम 1 to n मींस n into n plus 1 by 2। इज दैट ओके एवरीवन? Yes, sir. This or this. Then next one is sum of the square of first n natural number। ये सब एक्चुअली प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में था, बट वो चैप्टर डिलीट हो गया, सो इसीलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, इसका फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 ट्वाइस n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। और इसको ऐसे भी लिखते हो, तुम लिख सकते हो सिग्मा के स्क्वायर के गोज फ्रॉम 1 to n इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 ट्वाइस n प्लस 1 बाई 6। सिग्मा के स्क्वायर, अगर के 1 दोगे 1 स्क्वायर, 2 दोगे 2 स्क्वायर, 3 दोगे 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर। Am I clear? Yes, sir. Yes, sir. yes sir Then next one देखो, sum of first cube of first n natural number, ये होता है n स्क्वायर n प्लस 1 होल स्क्वायर बाई 4। और इसको ऐसे भी लिख सकते हो सिग्मा के k क्यूब cube k goes from 1 टू n स्क्वायर n प्लस 1 होल स्क्वायर बाई 4। अंडरस्टूड? Yes, sir. देखो सबको समझ में आया? Yes, sir. वेरी गुड। देखो इसके ऊपर एक स्मॉल एप्लीकेशन एक देता हूँ, देखो कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। दिस आर वेरी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। सर सिर्फ यही तीनों है स्पेशल हाँ, सीरीज में? यही तीनों है। यस, यही तीनों तुम लोग को जानना होगा। ये तीनों एक्चुअली पीएमआई में प्रूव किया जाता है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से। बाद में बोलूंगा वो थोड़ा थोड़ा।
दो वो डिलीट है, फिर भी तुम लोग को जानना होगा ये सब। लिखो, इफ द सम ऑफ द first 10 terms of the series one 3/5 Miss fraction whole square plus 2 2/5 whole square plus 3 1/5 whole square plus 4 square plus 4/5 whole square plus dot 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 is 16/5 m. Then m equals to, so ऑप्शन दिया है जैसे 102, बी नंबर 101, सी नंबर 100, डी नंबर 99। देखो एक बार ध्यान से वो सीरीज तो देखो, स्पेशल सीरीज तो देखो। मिला कुछ देखने को मिला? नहीं मिला ना? अद्भुत दिख रहा है ना? Yes, देखो, sir. इसको मिसफ्रैक्शन करो, 5 1 जा 5 3 8 8/5 होल स्क्वायर। यस, ठीक है। Yes, sir. थोड़ा इसका चेहरा देखता हूँ। 5 2 जा 10 प्लस 2 कितना? 12 15 16, ठीक है। देखो ऊपर 8 12 16, इसको ऐसे ही लिखो 4 स्क्वायर प्लस ये कितना होगा, ठीक है। अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes. आप sir. अप टू 10 टर्म इज इक्वल टू कितना दिया है? सम कितना दिया है? 16 by 16/5m. 16/5m. 16/5m। नाउ देखो 1/5 स्क्वायर सब में है ना, एक्सेप्ट दिस। Yes, sir. sir. 1/5 स्क्वायर कॉमन लेता हूँ, तो यहाँ पे रहेगा 8 स्क्वायर प्लस यहाँ पे कितना रहेगा? 12 स्क्वायर ना, Yes, isn't sir. it? प्लस यहाँ पे 16 square. 16 प्लस square. यहाँ पे 4 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर ऐसा होगा, क्योंकि 5 स्क्वायर है नहीं। मल्टीप्लाई Yes, करोगे sir. तो ये 4 स्क्वायर ही हो जाएगा फिर, है ना? आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. और इस तरफ आ गया 16/5m। नाउ देखो 1/25, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ 8 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर, ये हो गया 20 स्क्वायर ना। 4 इंटू 5 होल स्क्वायर लिख सकते हो, सर ना? Yes. Yes, sir. 10 टर्म
16/5 m। नाउ सब में देखो एक 4 है ना, 4 स्क्वायर, 4 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर, 4 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर है ना। Yes, sir. Yes, sir. वहां Yes, से sir. sir, 4 स्क्वायर सब में कॉमन होगा, 4 स्क्वायर बाहर लेके आओ। यहाँ पे रहेगा 2 स्क्वायर प्लस यहाँ पे रहेगा 3 स्क्वायर, यहाँ पे रहेगा 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर अप टू 10 टर्म, isn't it? Am I clear? Yes, Yes. sir. वेरी गुड। अभी देखो यहाँ पे तुमको एक चेहरा दिख रहा है ना, 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, एक्सेप्ट 1 स्क्वायर नहीं है, yes, sir, Yes, sir. एक्सेप्ट 1 स्क्वायर नहीं है। तो ये Yes, sir. 10 नंबर टर्म तो अभी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सो दैट तुमको देखने में थोड़ा आसान लगे। तो 2 से शुरू हुआ ना, Yes, sir. 2 Yes, स्क्वायर sir. 3 स्क्वायर 4 5 6, तो 10 नंबर टर्म तो 11 स्क्वायर होगा, yes, Yes. sir, Sir. क्योंकि 1 से शुरू होता तो 10 नंबर टर्म तो 10 स्क्वायर हो जाता, क्योंकि ये देखो एक सीक्वेंस में 2 3 4 5 6 सीरियली जा रहा है। तो अगर 1 से शुरू होता तो डेफिनेटली 10 से खत्म होता, बट 2 से शुरू हुआ इसीलिए कहाँ पे खत्म हुआ, 11 में। 11 स्क्वायर। वेरी गुड। इसका एक चेहरा देखो, 4 स्क्वायर 16/25। अभी अभी मैंने लिखा था, सिर्फ 1 स्क्वायर नहीं है, देखो है ना। हाँ sir, एक फॉर्मूला sir. लिखा था 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर। तो तुम एक काम करो, यहाँ पे 1 स्क्वायर ऐड कर लो इसके साथ करके, फिर वहां पे -1 स्क्वायर कर दो, ठीक है। Yes, sir. yes, sir, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। ये 1 स्क्वायर क्यों लगा लिया, क्योंकि तब एक वो स्पेशल सीरीज में आ गया। देखो ये 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर आ गया ना उसमें। हाँ sir, Yes, sir. तो दैट इज वो क्या था, n इंटू n+1 2n+1/6 ऐसा था ना, n इंटू n+1 2n+1 by N. 6। Yes, yes, sir. sir, What is n? 11. 11, 11। देखो n is 11, 1 2 3 अप टू लास्ट टर्म बोलता है n 11। तो n इंटू n+1 twice n+1 divided by what? 6. Then -1 square is 1 only, ठीक है। yes, sir, These are the advantages of this special series। बहुत जगह पे यूज होगा ये सब। 16/5m, so 11 into 12 into 23 minus 1, 6 से काटो, ओके। अंडरस्टूड। 16/25 into मल्टीप्लाई करो 46 into 11 6 10 0 1 5 ये होगा ना। देखो तो ये इंटू है, 6 plus 4 10 plus 1 5। देखो तो 506 है ना, Yes, sir. तो माइनस कर दो 505 5 से काटो, ठीक है। ये नीचे नीचे 5 5 16 16 ऊपर ऊपर कैंसिल हो गया, तो m इक्वल टू कितना आ गया, 101, 101। Is that okay? Yes, sir. yes, sir, देख लो सबको समझ में आया कि नहीं।
गौतम समझ में आया? Yes, sir. डन? Yes, sir. नाउ देखो व्हाट इज एचपी। हाँ ठीक है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या है? देखो ये एक नया चीज है। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन तो मालूम ही है ना। हाँ सर। तो एपी से, एपी लास्ट में बोल दूंगा, एपी से ही देखो हार्मोनिक प्रोग्रेशन डिराइव हो जाता है। तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या है तो बोल लेता हूँ पहले। किसी को मालूम है व्हाट इज हार्मोनिक प्रोग्रेशन? Yes, sir. So When we first two inverse term the 1 term, plus 1 बाकी हिंदी क्लास हो जाएगा। sir, when we inverse the terms of the AP, then the sequence is also in AP, then it is harmonic progression. यस, देखो हार्मोनिक प्रोग्रेशन मतलब खुद का कुछ भी नहीं है, वो चुराया हुआ है एपी से। मतलब सिंपली बोलते हैं एचपी। इफ एबीसी आर इन एपी, हाँ, then 1 by A, 1 by B, 1 by C are in what? HP। HP. मतलब AP को ही इन्वर्स कर दोगे तो वो क्या हो जाता है? HP HP. HP होता है। सो अभी बोलो, मान लो तुमको ये दिया है कि A, B, C are in HP, are in HP हार्मोनिक प्रोग्रेशन। देन ये बीच वाला B को बोलते हैं हार्मोनिक मीन। B is called what? हार्मोनिक Harmonic mean. मीन। Harmonic mean. यस, अभी हार्मोनिक प्रोग्रेशन का देखो खुद का कोई भी कुछ फॉर्मूला नहीं है। तो हार्मोनिक दिया है तो उसको हम लोग रेसिप्रोकल करेंगे तो इमीडिएटली वो एपी में आ जाएगा, होगा ना? Isn't it? Yes, ए sir. बी सी आर इन एचपी, तो उन लोगों का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? तुरंत एपी में आ जाएगा। yes sir सो अगर ये एपी में है सो यू कैन राइट 1 बाई बी माइनस 1 बाई ए इक्वल टू 1 बाई सी माइनस 1 बाई बी। डिफरेंस है कि नहीं? हाँ sir Yes, सो sir. 1 बाई बी, इसको इस तरफ लेके आओ, 1 बाई बी 1 बाई ए प्लस 1 बाई सी। तो इस तरफ बी एलसीएम लेंगे तो ऊपर 2 होगा, इस तरफ ए सी एलसीएम लेंगे तो ए प्लस सी होगा ऊपर। तो मतलब यहाँ से मैं बी फाइंड करूंगा। देखो बी इज कॉल्ड हार्मोनिक मीन ऑफ एसी, देन क्रॉस मल्टीप्लाई करो, बी इंटू ए प्लस सी इक्वल टू ट्वाइस ए सी। तो व्हाट विल बी बी देन? B is equal to what? Twice AC by A A plus plus C. C A plus C। मतलब याद रखना, अगर ABC तुम्हारा हार्मोनिक में है, A B C आर इन HP, तो तुम लिख सकते हो B इक्वल टू ट्वाइस A इंटू C बाई A प्लस C। अंडरस्टूड? Yes, sir. सो ये ऑलरेडी मैं डिराइव किया। सो B is called harmonic mean। B is called what? Harmonic harmonic mean Harmonic mean. Harmonic mean. सो अगर एक क्वेश्चन देता है, देखो फाइंड द हार्मोनिक मीन ऑफ
2,4 क्वेश्चन लिखो, फाइंड द हार्मोनिक मीन ऑफ 2 and 4। फाइंड करो तो इन दोनों का हार्मोनिक मीन। हम्म, Sir, 8/3. 8/3 3. देखो, हार्मोनिक मीन इक्वल टू, ये ए और ये सी है, सपोज ट्वाइस ए सी, 2 into 2 into 4 divided by a plus c, isn't it? 6, 16, so that is 8 by what? 8/3. 8/3. 8/3, understood? Am I clear? Yes, sir. यस सर। सर अगर 3 से ज्यादा नंबर दिया हो तो 2 या 2 से ज्यादा। नहीं, 2 से ज्यादा वो तुमको इंसर्ट करने देगा, बोलेगा इंसर्ट करो, जैसे जीपी में इंसर्ट किया था, याद है? यस सर। तो वो आ रहा हूँ, उस टॉपिक में आ रहा हूँ। देखो, अगर इंसर्ट करने दिया तो क्या होगा, देखो। तो अगर बोला है कि देखो ए एंड बी के बीच में हार्मोनिक मीन हम लोग इंसर्ट कर रहे हैं, देयर आर 2 नंबर ए एंड बी, इसके बीच में हम लोग एन टू हार्मोनिक मीन इंसर्ट किया, हाँ, एन एच एम्स। एम आई क्लियर? Yes, sir. अंडरस्टूड? सर एन Yes, sir. वो क्या है? एन एच एम्स, एन हार्मोनिक मीन्स, यहाँ पे कितना, ये सारा मीन है ना इसका, ए एंड बी के बीच में, यस सर। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा एन टू हार्मोनिक मीन में इंसर्ट किया। तो यहाँ पे डी कैसे फाइंड होगा, देखो, अगर ये, तो मतलब ये पूरा चीज तो एचपी में आ जाएगा तब, है ना? Yes, sir. ये पूरा सीरीज तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन में आ जाएगा। Am I Yes, clear? sir. Yes, sir. तो अगर ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है, सो कैन आई से देन ये एपी में है, देन कैन आई से Yes, sir. Yes, sir. देन यहाँ पे टोटल टर्म कितना होगा, n+2, यहाँ से यहाँ तक Sir. n टर्म था ना? Sir, Yes, sir. यस, सर मतलब कोई हार्मोनिक प्रोग्रेशन के जो टर्म्स है उसको रिवर्स कर देने से हमें हमेशा एपी मिलेगा। हाँ, यस, हमेशा एपी को रिवर्स करोगे एचपी होता है, एचपी को रिवर्स करोगे तो हर एपी हो जाएगा। वही है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। है हार्मोनिक प्रोग्रेशन का खुद का कुछ नहीं है, जो सीक्वेंस एपी में है उसको रेसिप्रोकल कर दो, दैट विल कन्वर्ट इनटू एचपी। हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो ये Okay, एचपी में है, उसको रिवर्स कर दोगे तो क्या हो जाएगा, एपी। HP. एपी। AP. नाउ यहाँ से देखो टोटल टाइम कितना होगा यहाँ पे, n+2। n+2, बिकॉज यहाँ से यहाँ तक n टर्म है, ये एक टर्म, ये एक टर्म, 2 टर्म, तो इसका नाम n+2 नंबर टर्म है कि नहीं? इसका नाम क्या होगा तब, n+2 नंबर टर्म होगा ना? यस सर। Am I clear? यस सर। एन का तो हाँ 1/a से 1/hn तक n है। हाँ, यहाँ से यहाँ तक n है, ये दोनों को ऐड करो, n प्लस कितना होगा तब, n+2 टर्म। Yes, sir. यस सर। अगर मान लो यहाँ पे 10 टर्म है, ये दोनों ऐड करोगे तो 12 टर्म नहीं होगा, Yes, sir. हाँ एंड सर। लास्ट, वो लास्ट टर्म का ही नाम 12 टर्म होगा। तो टोटल अगर n+2 टर्म है,
तो ये लास्ट टर्म का नाम क्या होगा? n+2 नंबर टर्म। yes sir, Yes. इसका नाम नहीं होगा, इसका नाम नहीं होगा, इसका लास्ट वाला टर्म। अगर एक क्लास में 41 स्टूडेंट है तो लास्ट रोल नंबर क्या है? 41, इजंट इट? yes sir, Yes, Yes. यहाँ sir. पे 12 टर्म है तो लास्ट वाला 12 नंबर टर्म। सो n+2 टर्म है, लास्ट वाला n+2 नंबर टर्म। तो एपी में n+2 टर्म क्या होता है? ए प्लस, ए मतलब फर्स्ट टर्म। व्हाट इज फर्स्ट टर्म? 1 by a, n means n+2 minus 1 into d, isn't it? एपी का nth टर्म, एपी का nth टर्म देखो, a प्लस n-1 into d ना। yes sir, Yes, sir. तो यहाँ पे a मतलब क्या है? 1 1 by by a, n मतलब n+2 देन -1 एंड d फाइन करना है यहाँ से। इसको उस तरफ लेके जाओ, 2 - 1 + 1 into d। So what will be d? Understood? Yes, sir. Understood? yes sir, Yes, sir. तो अभी तुमको ये d जब मिलेगा तो यहाँ पे जब इंसर्ट करोगे एक एक करके एपी में, तो पहले एपी फॉर्म होगा ना। Yes, sir. Total HP रहेगा। उसके sir. बाद उसको अगर इन रेसिप्रोकल करोगे तो किस में आएगा? HP. hp में, HP. एच पे में आ जाएगा। Am I clear? Yes, sir. Yes, sir. आया Yes, sir. समझ में? पहले देखो वो अगर एचपी में दिया है कि दिस इंसर्ट फॉर एचपी, तो तुम लोग एक काम करो, पहले एपी में बना लो। एपी में बना के उसका डी फाइन कर लो, डी फाइन करके एपी फॉर्म कर लो, फिर रेसिप्रोकल कर दो, एचपी आ जाएगा। दैट इज वेरी इजी। तो जैसे देखो एक एग्जांपल दे रहा हूं, बोला है इंसर्ट, लिखो 4HM हार्मोनिक मीन 4HM insert 4 HMs between 2/3 and 2/13. Okay. yes sir, सो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तुमको ये फाइंड करने दिया। देखो तुमको फाइंड करने दिया क्या? देखो वेरी केयरफुली देखो, ये ए है और ये बी है ना, isn't it? Yes, sir. ये तुमको इंसर्ट करने दिया है ना। ये 4 हार्मोनिक मीन है। अंडरस्टूड? yes sir, Yes, sir. ये पूरा सीक्वेंस तो क्या पे आ जाएगा? एचपी हार्मोनिक प्रोग्रेशन। Yes, sir. तो Yes, अगर sir. तुम इसको Yes, sir. रेसिप्रोकल करोगे 3/2, 1/H1, 1/H2, ये किसमें आएगा? ap में, तो ये बी है, ये क्या है? ए है ना। Yes, sir. तो ये ऑलरेडी 1/b हो गया ना, isn't it? एक्चुअली ए एंड बी ये है, तो डी फाइन क्या था? 1/b मतलब ये, और 1/a मतलब ये, डिवाइडेड बाय n+1, n4, 4 + 1 is what? 5. 5. Understood? Yes, sir.
So this is 5. यहाँ पे LCM ले लो 10/2 5. सर what is यहाँ D? पर n 6 क्यों नहीं हुआ? क्योंकि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स तो 6 होगा। अरे इसमें हम लोग थोड़ी वो फॉर्मूला फिर से लिखेंगे, वो डायरेक्ट डी का फॉर्मूला ऑलरेडी फाइंड कर लिया ना, ये फाइंड हो गया ऑलरेडी फॉर्मूला, है कि नहीं? यस सर। उसमें मैंने वैल्यू चिपका दिया, ये ए ये बी, देखो यस सर। तो 1/b मतलब ये ऑलरेडी हो गया, देखो ये 1/a ये है, यस सर। डिवाइडेड बाय n + 1 and 4 + 1 5. सो डी कितना आया? 1. 1. सो देखो ये पहला टर्म एपी का ना 3/2, Yes, sir. इसके साथ 1 Yes, प्लस sir. करोगे तो डेज वाला मिलेगा। Yes, sir. पहले एपी कन्वर्ट कर लो, फिर रेसिप्रोकल कर देना, फिर से एचपी में आ जाएगा। तो एपी इज 2/3, इसके साथ 1 प्लस करो, डी प्लस करते जाओ, क्या होगा? 5/, फाइव बाई थ्री। नहीं Sir, नहीं, AP 3/2. 3/2 गलती लिखा मैं, 3/2 ये एपी है। 3/2 के साथ 1 प्लस करो, डी प्लस करते जाओ, 5/2, 5/2। 5/, इसके साथ फिर 1 प्लस करो, 7/2, फिर 1 प्लस करो, 9/2, फिर 1 प्लस करो, 11/2. और ऑलरेडी 13/2 आ गया। देखो ये 4 टर्म इंसर्ट हो गया ना? यस सर। So therefore, what is your required HP? 2/3, then 2/5, then 2/7, then understood? ये 2 टर्म दिया था ना HP का, मुझे वो 4 इंसर्ट कर दिया, इंसर्ट हो गया। यस सर। देखो समझ में आया कि नहीं? देखो शाइना, समझ में आया? सर लास्ट पार्ट वाला समझ नहीं आया कौन सा? सर। एपी। यस सर। एपी देख, एपी तो मालूम है ना एपी क्या है? यस सर। देख एपी क्या होता है? ए देन ए प्लस डी, ये एपी होता है ना? यस सर। सो अगर मान लो फर्स्ट टर्म इज 2 एंड डी इज 3, तो 2 के साथ 3 प्लस किया 5, देन 5 + 3 8, ये एपी फॉर्म हो जाता है ना? यस सर। तो एपी में मेरा फर्स्ट टर्म था देखो 3/2, तो मुझे डी मिला था 1 ना? यस सर। तो ये फर्स्ट टर्म के साथ 1 प्लस करो, 3/2 + 1 a प्लस डी, so you will get 5/2. Understood? समझा कि नहीं? हेलो, यस सर। यस सर। मतलब सब टर्म के साथ डी प्लस करते जाओ, नया टर्म मिलता जाएगा। सो 3/2 प्लस डी मतलब 1 प्लस करो, सेकेंड टर्म मिला, फिर 1 प्लस करो, ये मिला, जब तक 13/2 नहीं आता। लास्ट टर्म 13/2 था। फिर इसको उल्टा करोगे तो तुम्हारा एचपी आ जाएगा, फिर से उल्टा कर दिया, देखो तो यही एचपी हो गया ना? यस सर। सो दिस आर 4 हार्मोनिक मीन। अंडरस्टूड? यस सर। तो हार्मोनिक मीन इज नथिंग, जस्ट एरिथमेटिक मीन से उसको फिर उल्टा कर दो, हार्मोनिक मीन हो जाएगा। सर सर किसी भी दो नंबर्स के बीच जो भी नंबर्स हम इंसर्ट करते हैं और वो सीक्वेंस एचपी में होने से वो नंबर्स हार्मोनिक मीन कहलाते हैं। हाँ, क्या क्या?
सर मतलब किसी भी दो नंबर्स के बीच अगर हम कोई भी नंबर्स ले, हाँ, जितना कोई भी भी नंबर नंबर्स लेने ले से वो सब हार्मोनिक मीन कहेंगे। पहले वो हार्मोनिक प्रोग्रेशन में होना होगा ना, ओके समझ में सर। आया? अगर वो हार्मोनिक प्रोग्रेशन, जैसे अगर एपी के अंदर तू डालेगा कि दो नंबर के बीच में कुछ भी डाल देगा, वो एपी में नहीं भी हो सकता यस सर। है कि नहीं? जैसे मान लो ये है मेरा 10 और ये है मेरा 20, मैंने इसके अंदर डाल दिया 13, 15 एंड 17, एपी में होगा क्या? नो सर। No, तो sir. therefore these are not am between 10 and 20, पूरा सीक्वेंस टू एपी में आना होगा ना, then only these Yes, are called ams of 10 and 20. so similarly is the same thing, जब तुम यहाँ पे हार्मोनिक मीन इंसर्ट करोगे पूरा सीक्वेंस टू एचपी में होना होगा, मतलब रेसिप्रोकल करोगे तो एपी में आ जाना होगा। ओके सर। अंडरस्टूड नाउ? यस सर। वेरी गुड। बाकी सबको समझ में आया? सर सर 4 HP है, SHM है, इसलिए N4 लिया है। हाँ हाँ, जितना बोलेगा वहां पे देख, फॉर्मूला में क्या आया था, n+1 है ना नीचे, यस देख सर। n जितना होगा वो नंबर ऑफ HM, हार्मोनिक मीन। जैसे जीपी में भी क्या था ना, जीएम, देख जीएम में क्या था कि नहीं, जीएम में क्या था, इंसर्ट किया था क्या जीएम में हम लोग? नहीं बोला था ना, बोला था? नहीं सर। सर नहीं बोला था आपने। अच्छा देख, जीएम देख, जियोमेट्रिक मीन देख, जियोमेट्रिक मीन मतलब मान लो ए एंड बी के अंदर मैंने n ठो टर्म डाल दिया, ठीक है, सो दैट द एंटायर सीक्वेंस बिकम व्हाट, जीपी। जीपी। देन ये सारा को क्या बोलते हैं, जीएम। GM. जीएम, बिटवीन ए एंड बी। तो देखो यहाँ पे तुमको आर क्रिएट करना होगा, आर। अगर कॉमन रेशियो मालूम होगा, सपोज तुमको पहला टर्म दिया है 2 और बोला है कि कॉमन रेशियो इज 3, तो इजीली तुम जीपी फॉर्म कर सकते हो। 2 इंटू 3 क्या होगा, 6 ना, यस सर। Yes, sir. 6 इंटू 3 18, 18 इंटू 3 मल्टीप्लाई करते जाओगे, ओके, यस सर। अंडरस्टूड? तो ये हो गया जीपी फॉर्म हो गया। तो ये बाई ये करो 3, ये बाई ये करो 3, ये बाई ये करो 3, मिलेगा कि नहीं? यस सर। तो उसी Yes, तरह पहले sir. हम लोग यहाँ पे आर क्रिएट करेंगे, आर जानने के बाद एक के साथ मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो मुझे सारा टर्म मिलता जाएगा। तो यहाँ पे एन टर्म है, तो सारा मिला के कितना टर्म होता है, n+2 टर्म्स। N plus एन 2. प्लस 2 टर्म। तो इसका नाम n+2 टर्म होगा। यस Yes, सर। sir. तो जीपी में एन टर्म का फॉर्मूला है a इंटू आर टू द पावर n-1, याद है? यस सर। सो यहाँ पे होगा फर्स्ट टर्म इज a ओनली, r टू द पावर n मींस n+2 -1, n-1 Yes, sir. is equal to what, this side बी। n+1 r टू द पावर n+1 b by a। तो यहाँ से मुझे पावर हटाना है ना, Yes, sir. तो देखो ये r टू द पावर n+1 में एक काम कर देता हूँ, 1 by n+1 लगा देता हूँ बोथ साइड, तब ये कैंसिल हो जाएगा, पावर पर मल्टीप्लाई हो गया, isn't it? यस सर। So r equal to what, b by a to the power 1 by n+1। n means number of gm, कितना इंसर्ट करना चाहते हो, लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। ये r क्रिएट हो गया। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, देखो समझ में आया सबको? यस सर।
Yes, sir. शाइना, Yes, sir. तो अगर तुमको बोलता है देखो कि दो टर्म दिया है, देखो इंसर्ट 4 GMs between 3 and insert 4 GMs between 3 and 243. Okay, n means 4. Number of GM, how many? 4. 4. A is what? 3. B is what? 243. 243. 243. एक्चुअली तुम्हारा स्ट्रक्चर ऐसा है 3 GM1 GM2 GM3 GM4 देन 243. तो एंटायर सीक्वेंस ऑब्वियसली जीपी में आ जाएगा. अगर जीपी में नहीं आएगा तो जीएम कभी नहीं हो सकता हो. तो यहाँ पे आर फाइंड कर लो. आर इक्वल टू बी बाई ए होल टू द पावर 1 by n plus 1. n is 4. Yes or not? Yes, sir. 243 by 3, 81. Yes. Yes, sir. 1 by what? 5. 1 by 5. नहीं होगा शायद. तो 51 3 to the power कितना दिया मैंने? अच्छा, इसमें एक ज्यादा लिख दिया मैंने. 3 लिखो. 3. हाँ, इंसर्ट 3 GMs नॉट 4. जीपी में आएगा ही नहीं तो 3 GMs. ओके, अंडरस्टूड? Not 5, 3, huh? Yes, sir. So 81 means what? 3 to the power 4? Yes, sir. Yes, sir. To the power 1 by 4 cancel. So what is R? 3. 3. 3. तो देखो टर्म्स क्या क्या होगा. तो तुम्हारा पहला टर्म एकदम 3 है ना. ओके, फर्स्ट टर्म इज व्हाट? First term 3. 3. उसके साथ R मल्टीप्लाई करो. R मल्टीप्लाई करो. नेक्स्ट टर्म क्या होगा? 9. 9. 9. फिर इसके साथ R मल्टीप्लाई करो. 27. 27. फिर इसके साथ R मल्टीप्लाई करो. 81. 81. फिर इसके साथ R मल्टीप्लाई करो. 243. स्टॉप. लास्ट टर्म मिल गया. देखो ऑटोमेटिक ये 3 टर्म इंसर्ट हो गया और पूरा Yes, sir. सीक्वेंस जीपी में आ गया. Yes, sir. अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. लिखो इंसर्ट 3 नंबर्स. एक खुद करो देखता हूँ. इंसर्ट 3 नंबर्स 3 GMs between 1 and 256. करो, खुद करो, सब देख रहा हूँ. पनिता है, प्रेम, पनिता. Yes, sir. Yes, sir. कर. समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. Yes, sir. गुड. विवेक. Yes, sir. कर. Sir, 4, 16, 64. 1 4 16 64 256. Yes, sir. गुड. बाकी सबको मिला? बाकी सब क्या हो रहा है?
N is 3, A is 1, B is 256, R find करो. Two 56 by 1. N is what? 3 plus 1. 256 to the power 1 by 4. 256 means what? 4 to the power 4. 4 to the power 4. 4. My hairstyle is very nice na today. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. My wife is smiling, huh? Okay. She's telling your hair is not there. 4. This is 256 means 4 to the power 4, na? Yes, sir. Yes, sir. Then whole to the power 1 by 4. It's cancel. So R is what? 4. So Four. this is one important thing. Yes. Sometimes they will ask you from here only R, find R. So now insertion is very easy. So terms will be, first term is 1, then with that you multiply R. 1 into 4. 4 4s are 1, 4, 16. 4. 16, 64, 54. okay. Yes, sir. Yes, sir. Next class Yes, I'll sir. start AP also, and then combine some question is there very important AP, GP, HP. Okay. Okay, sir. So that type of sum will solve. Okay. Okay, sir. Chalo, bye. Thank you. Thank Thank you, you, sir. And Thank you you, should be sir. ready. You should be ready for offline, huh? Yes, sir. Yes, sir. Ready. Hmm.